हाय गाइस, भारद्वाज ट्यूटोरियल से मैं हूं अजय भारद्वाज। आज हम क्लास 12th यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल डिस्कस किया जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द डायग्राम ऑफ द टॉपिक। According to Wheatstone bridge principle, state that for resistance P, Q, R, S, for resistance P, Q, R, S are arranged in the form of a bridge as shown in figure। कि फोर रेजिस्टेंस है P है, Q, R और S एक ब्रिज के रूप में कनेक्ट किए गए हैं with a cell E and K1 key between the 2 point AC and a galvanometer G with a tapping key his name is K2। क्या है कि फोर रेजिस्टेंस है P, Q, R और S, इनको एक ब्रिज में कनेक्ट किया गया है एक फिगर के अंदर। और G क्या है, यहाँ पे गैल्वनोमीटर है, K2 टेपिंग की है, E क्या है, EMF ऑफ द सेल है, ये K1 की है जो ऑन और ऑफ का काम करेगा। नाउ इन दिस केस यू विल प्रूफ दैट P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। आपको क्या प्रूफ करना है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S प्रूफ करना है। नाउ डिस्कस द प्रूफ ऑफ दिस टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल K1 इज क्लोज्ड। आपने क्या किया, K1 को क्लोज किया। नाउ द टोटल करंट इज I इज द टोटल करंट फ्रॉम द सेल E एंड दिस करंट इज रीचिंग एट द पॉइंट A। जो ये करंट I पॉइंट A पे रीचिंग करता है तो ये this current is I divided into the two parts। I1 goes to the AB part and I minus I1 is goes to the AD part। I minus I1 is goes to the AD part। I1 is goes to the AB part, I minus I1 is goes to the AD part। now I1 is reaching at the point P is also again divided into two parts। IG is along galvanometer path या BD path and I1 minus IG is along BC। I1 minus IG is along BC। if K2 is closed, later on K2 is closed, first of all K1 is closed, later on K2 is closed, then this point is also junction point। obey the Kirchhoff first law, the combination of the two current is at this point D and combination is I minus I1 plus में IG I minus I1 plus में IG, this along DC path, this along DC path। now these two current is also towards the junction point C। the sum of the two current is this point C, current is I minus I1 plus IG and this point C current is I1 minus IG। तो एडिंग करने पे I1 से I1 कट जाएगा, IG से IG कैंसिल आउट, तो रिमेन करंट इज I। तो टोटल करंट इज आल्सो
emitting and total current also is leaving is I. This is the circuit is complete. This is the circuit is complete. Now prove this P upon Q equal to R upon S. Now using the Ampere second law at the loop of A, B, D, A. Using using Kirchhoff's law. Using Kirchhoff's law at loop A, B, D, at loop A, B, D, A आपने यूज किया किर्चॉफ्स लॉ को एट द लूप ए बी डी ए में। किस लूप में यूज किया? लूप ए बी डी ए। दिस पाथ इज ए टू बी एज वंस मूव फ्रॉम ए टू बी करंट आल्सो मूव्स अलोंग विद मी। करंट भी हमारे साथ मूव कर रहा है और हमारा पाथ क्या है? ए टू बी है। रेजिस्टेंस कितना है? पी है। करंट कितना? I1। तो ओबे द ओम्स लॉ I1P I1P। now B to D, this is also closed, current is IG, resistance is G, so plus IG into में G। now D to A, you moves D to A but current moves in opposite direction, तो indicate the minus sign, तो minus bracket I minus I1 into में R minus I minus I1 into में R equal to 0, equal to 0। This is the equation first। now using the Kirchhoff's law in loop B C D B में, loop B C D B लूप लिया हमने कौन सा? B C D B। दिस इज सेकेंड लॉ यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ किर्चॉफ्स। तो हमारा लूप क्या है? B C D B है। तो अलोंग B to C करंट इज आल्सो मूव विद मी I1 माइनस IG इंटू में Q, I1 माइनस IG इंटू में Q ओबे द ओम्स लॉ। resistance is Q, current is I1 minus IG into में Q। now C to D, current moves in opposite direction with me, this path is C to D। हमारा पाथ क्या है? C to D है। करंट हमारे अपोजिट आ रहा है, तो इट मीन्स माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S से। now D to B, current is opposite, this path is D to B is minus IG into में G, minus IG into में G is equal to 0। this is the equation second, minus IG into में G is equal to 0। if bridge is balanced, if bridge is balanced, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो देन गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। अगर ब्रिज बैलेंस में हो जाएगा तो जो ये बीच वाला पाथ है इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर है कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट अलोंग द BD, करंट अलोंग द BD इज 0। तो गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, देन IG इज इक्वल टू 0। तो जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है इस पाथ में BD में, IG क्या होगा? 0 होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए IG की, तो क्या वैल्यू आएगी? I1P, IG 0 हो गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 माइनस या इसको इक्वल कर दिया I माइनस I1 इंटू में R इक्वल टू 0। ये लिख दिया मैंने I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे ही इस वाली वैल्यू पुट किया, IG 0 क्या बनेगी? ये I1Q माइनस I माइनस I1 G 0 हो जाएगा इंटू में S, ये पूरी वैल्यू क्या जाएगी? 0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज I1Q इज इक्वल टू
I माइनस आई वन इंटू में एस इज आई वन इधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, आई माइनस आई वन इंटू में एस, इक्वेशन इज 2, इक्वेशन इज 2। नेक्स्ट डिवाइडिंग 1 बाई 2, डिवाइड किया 1 को 2 से, डिवाइडिंग 1 बाई 2 वी गेट 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आएगी, I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I माइनस आई वन इंटू में R अपॉन में I माइनस आई वन इंटू में S। I1 से I1 कैंसिल आउट, I माइनस आई वन से I1 कैंसिल आउट, तो वैल्यू इज आंसर इज P अपॉन Q। दिस इज स्टेप, तो क्या आंसर आएगा यहां से, P अपॉन Q इज इक्वल टू द R अपॉन S। दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। प्लीज note down these points in the notebook, subscribe the channel, press the bell icons. Thank you for watching this video.